Myself Ruxana Sheikh. I am going to teach you 9th standard mathematics CBSE. Today I am going to start the chapter number 8, quadrilateral. If you like my video, please don't miss to subscribe my channel so that you will not miss any of my upcoming videos. Let's start. Hi student, let's begin with question number 4, exercise number 8.1. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. What is given? Show that the diagonals of a square are equal. What is given? A square is given to us. And what else is given? Its diagonals are equal. Okay. And bisect each other at right angle. So, show that the diagonals of a square are equal. A square is given. और हमें ये प्रूफ करना है कि उसके जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो इक्वल है एंड उसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. गिवन में क्या लिखेंगे? ओनली ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. सफिशिएंट है. अगर स्क्वायर है तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप जानते हैं. उसकी चारों साइड इक्वल होगा, उसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा. हमें क्या प्रूफ करना है कि उसके डायगोनल्स इक्वल है एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. Got it? So let's draw a diagram of square. So we'll draw the diagram square A, B, C, D. What is given? In given, we'll write A, B, C, D is a square. That's all. What is TPT? We have to prove number 1, its diagonals are equal. That is, diagonal AC is equal to diagonal BD, number 1. And they bisect each other at right angle. Okay, it is given na, it is asked. So AC bisect BD at 90 degree. So these two TPTs are there. So let's discuss proof. Before we prove, पहले डिस्कस कर लेते कि भाई करेंगे कैसे. हमें प्रूफ करना है AC is equal to BD. करेक्ट. बहुत ही ईजी है. क्या हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर. रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि गिवन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गिवन एंड TPT, तो गिवन से ही आपको शुरुआत करनी है. लाइक उन्होंने हमें स्क्वायर दिया है तो वी नो दैट स्क्वायर का प्रॉपर्टी आपको ऑफकोर्स यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर. Can we write in triangle ABD and ABC AD equal to BC? Yes, we can write. Why? The sides of square are equal. Then, can we write angle DAB is equal to CBA each 90 degree? Yes, the side angle of a square are right angle. And the last is ये तो हो गया 90 और ये AB is equal to AB common. So, by side angle side, the triangles are congruent and hence we can write AC equal to BD by CPCT. Isn't it very simple? So let's prove the first part. First अभी हमने डिस्कस किया, अब हम फर्स्ट प्रूफ कर लेते हैं, then we'll discuss the second one. So in triangle ABD and in triangle ABC, and ABC, you can write AD is equal to BC, reason sides of square. Okay. Second element, angle DAB is equal to angle CBA each 90 degree. Third element, AB is equal to AB, it's common, and therefore triangle ABD is congruent to triangle ABC by side angle side. Now therefore we can write AD is equal to AC, we can write AC is equal to BD by CPCT. Hence prove the first part. Okay, हमने बता दिया कि उसके डायगोनल्स इक्वल है. इन सेकेंड वी हैव टू प्रूव AC बाइसेक्ट BD एट 90 डिग्री. अब हमें ये बताना है कि ये जो AC है और वो BD है एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे. ओके, नाउ हाउ टू डू दैट. So let's discuss. First of all, since the square is a parallelogram, आप जानते हो कि स्क्वायर जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है, राइट. पैरेललोग्राम की फैमिली आपको याद होगी, तो स्क्वायर बिलोंग्स टू दैट फैमिली. सो स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. सो कैन वी राइट कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर? करेक्ट. सिंस अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, इट्स डायगोनल मस्ट बाइसेक्ट ईच अदर. तो कैन वी राइट AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD? Yes, we can. वो मिल गया हमें. देन नाउ कैन वी प्रूफ ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट?
यस, वेरी इजीली. हाउ? AO इक्वल टू AO कॉमन, फर्स्ट एलिमेंट. दूसरा एलिमेंट हमें मिल जाएगा AD इज इक्वल टू AB. जस्ट प्रूफ्ड, अभी हमने प्रूफ किया क्या, क्योंकि नहीं अभी प्रूफ नहीं किया, सॉरी, अभी हमने बताया कि वो स्क्वायर है ना, ये तो दिया ही था हमको, राइट. एंड AO इक्वल टू AO कॉमन. सो कौन सी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? SSS से. ये दोनों ट्राइंगल लिए हमने AOB और AOD. AO इक्वल टू AO कॉमन हुआ. BO इक्वल टू OD हमने बताया कि डायगोनल्स जो रहते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के. एंड AB इज इक्वल टू CD हो गया, राइट, क्योंकि वो स्क्वायर की साइड से. उसके बाद कैन बी राइट एंगल AOB इक्वल टू AOD बाई CPCT. यस. कैन बी ऑल्सो राइट कि एंगल AOB, this AOB and AOD is equal to 180 डिग्री. Why? लीनियर पेयर है ना, दोनों एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. एंड बोथ आर इक्वल ऑल्सो. सो कैन बी राइट डबल ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 एंड हेंस AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस प्रूव्ड. अंडरस्टूड? सो लेट्स प्रूव. इजंट इट वेरी इजी? ये भी बहुत इजी है. सेकेंड पार्ट, डायग्राम आपको दिखते रहे तो बेटर होगा. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना पड़ेगा कि उसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि हम उसको ले रहे हैं ना, उस एलिमेंट को BO इक्वल टू OD हम लेने वाले हैं. तो ये आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्यों इक्वल बताया. तो लेट्स मेंशन सिंस एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड diagonals of parallelogram bisect each other, therefore you can write AO equal to OC and BO equal to OD. All right, now in triangle AOB and in triangle AOD, see I am taking this two adjacent triangle. You can take any triangle. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये ही दो लो. AOB और AOD लिया हमने, आप चाहो तो AOB और BOC ले लो. सेम SSS से वो भी प्रूफ हो जाएगा. It's up to you. I'm more comfortable with these two triangles, so I took that. You can take anyone. So now in triangle AOB and AOD, first element we can write AB is equal to AD. AB equal to AD. Sides of square are equal, that's why we can write. Second element is equal to BO या OB equal to OD, because we proved above. ये चीज़ हमने ऊपर बताई है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये देखिए यहाँ पर हमने बताया है उसको. और एक और थर्ड एलिमेंट लेंगे हम लोग, AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा. सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD by SSS and therefore angle AOB, sorry थोड़ा ऊपर लेती हूँ, AOB is equal to angle AOD by CPCT. Also angle AOB plus angle AOD is equal to 180 degree, linear pair, and they are equal also. So we can replace this AOD by AOB and hence we can write twice angle AOB is equal to 180 degree and therefore angle AOB is equal to 90 degree. 180 divided by 2 is 90 degree. Hence proved कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ABCD bisect each other at 90 degree. Okay, so now let's begin with question number 5. What is question number 5? It is NCERT exercise number 8.1. Question number 5 is, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal, a quadrilateral is given and its diagonal are equal, it is also given, means we can write AC is equal to BD. Okay, and bisect each other at right angle. ये भी given है कि they bisect each other at right angle. Okay, ये 90 डिग्री पे bisect कर रहे हैं, ये given है. Then it is a square. प्रूफ क्या करना है कि वो स्क्वायर है. एग्जैक्टली अपोजिट टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का जो गिवन था वो यहाँ पे TPT है और वहाँ का जो TPT था वो यहाँ पर गिवन है. सी द रिलेशन. ओके, यहाँ उल्टा दिया है उसका. सो लेट्स प्रूव व्हाट इज गिवन. सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस. गिवन में क्या है, ABCD इज अ quadrilateral. ABCD is a quadrilateral and what else is given?
it is given that its diagonals are equal. So diagonal AC is equal to BD, and also it is given that AC bisect BD at 90 degree, bisect BD at 90 degree. And what is TPT? TPT is that ABCD is a square. Okay, this is given. अच्छा, उन्होंने ये दिया है कि इसके जो डायगोनल्स है, सी दिस डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये गिवन है. बाइसेक्ट ईच अदर बोला है तो कैन यू नो दैट अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो किसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं? प्रॉपर्टीज आपने रोम्बस की पढ़ी है, पैरेललोग्राम की भी पढ़ी है, तो पैरेललोग्राम की भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, अभी हमने लास्ट यूज भी किया उसको. सो कैन बी राइट कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, देयर डायगोनल्स ऑफ AC एंड BD, diagonal AC and BD bisect each other. So can we write ABCD is a parallelogram since the diagonal bisect each other? Of course yes. So हम इसको पैरेललोग्राम, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, मतलब AB इक्वल टू CD हो गया और BC इक्वल टू AD हो गया. अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है स्क्वायर. आपको पता है स्क्वायर के लिए क्या प्रूफ करना होता है? उसकी चारों साइड इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, as well as each angle is 90 degree. because अगर आप सिर्फ all four sides equal proof करते हो तो it can be rhombus also, and since it is a square you have to prove that its each angle is 90 degree. okay, तो 90 degree proof करने के लिए सबसे पहले can we prove that कि ये वाला एंगल, आई मीन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, किसी तरह अगर हम ये प्रूफ कर लेते हैं तो हम, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम तो बता ही दिया है, तो हम बता सकते हैं एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary, and then twice angle A is equal to 180, so angle A is equal to 90 degree, है ना, ऐसे ही होगा. so but वो कैसे होगा? उसके लिए हमें जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये DAB और ट्रायंगल CBA, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा. ऑल राइट, सो लेट्स प्रूव. हाँ, लेकिन उसके भी पहले हमें साइड्स भी प्रूफ करने, एडजेसेंट साइड्स भी उसके इक्वल बताने पड़ेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम से अपोजिट साइड इक्वल हुए. ये दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे तो उससे एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी, तो चारों साइड इक्वल हो जाएगी. तो पहले हम उसकी चारों साइड इक्वल प्रूफ करेंगे, फिर उसका ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, तब जाके वो स्क्वायर प्रूफ होगा. अंडरस्टूड? क्या करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट. okay, so let's begin one by one. first of all proof, let's begin with proof. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि since diagonal AC and BD bisect each other, therefore we can write ABCD is parallelogram. ठीक है, अब वो पैरेललोग्राम हो गया है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, मतलब AB is equal to CD and BC is equal to AD. give it number 1, मतलब अपोजिट साइड हमने यहाँ इक्वल बता दी. अब जब हम एडजेसेंट साइड इक्वल बता देंगे तो उससे उसकी चारों साइड इक्वल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने अपोजिट साइड इक्वल बताई, इसलिए यहाँ नंबर 1 दिया. एडजेसेंट साइड इक्वल बताने के लिए क्या करेंगे हम? नाउ प्रूफ एनी टू एडजेसेंट एंगल कॉन्ग्रुएंट. दैट इज, मैं ये दो एडजेसेंट ले रही हूँ जो मैं हमेशा लेती हूँ, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD. 3 एलिमेंट है हमारे यहाँ इसमें आराम से. कौन कौन से है? एक तो ये AO इक्वल टू AO आपका कॉमन आ जाएगा. उसके बाद BO इक्वल टू OD जो है वो हमने बताया कि जो डायगोनल्स वो है वो बाइसेक्ट करते हैं, उन्होंने गिवन है बाइसेक्ट वो करते हैं, तो इसलिए हम वो भी बता सकते हैं कि डायगोनल्स वहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं. O इज़ अ मिड पॉइंट. उसके बाद AOB जो रहेगा इक्वल टू AOD हो जाएगा, वो तो 90 डिग्री, वो तो गिवन ही है. सो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो लेट्स प्रूव इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल AOD BO इज इक्वल टू OD. O इज मिड पॉइंट, बाइसेक्ट कर रहा है, आप वो भी लिख सकते हो. O इज मिड पॉइंट ऑफ BD. ओके, और यू कैन से इट्स बाइसेक्ट. एंड एंगल AOB 90 डिग्री वाला है, ये दोनों AOB और AOD इज इक्वल टू AOD, इट्स ईच 90 डिग्री. नाउ AO इक्वल टू AO, इट्स कॉमन साइड. नाउ देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOD by side angle side.
and therefore AB is equal to AD by CPCT. See, adjacent sides are equal. यहाँ हमने adjacent sides equal proof कर दी, but ये हमने इस पे पहले भी बताया है कि AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, AB CD के भी इक्वल है, तो ये AB CD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है. देयरफॉर वी कैन राइट कि एंड ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD and we can write AD is equal to BC, that is all four sides are equal. AB equal to BC equal to CD equal to DA. Give it number 2. क्या हो गया, अभी इसकी चारों साइड्स हमने प्रूफ कर दी इक्वल. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ऑल फोर साइड्स कैसे इक्वल प्रूफ करी, अपोजिट साइड से और एडजेसेंट साइड से. ऑल राइट, ओके. अब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल मीन्स वो रोम्बस भी हो सकता है, इसलिए हमारा यहीं तक अगर आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है आपका. ओके, यू हैव टू प्रूव दैट सिंस वी नीड टू प्रूव अ स्क्वायर, यू हैव टू प्रूव दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री. ओके, फॉर दैट 90 डिग्री आपको बताया ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं. बहुत इजीली वो भी प्रूफ हो जाएगा कॉन्ग्रेंट, बिकॉज वी कैन राइट AD इक्वल टू BC, वो तो हमने प्रूफ कर दी, चारों साइड इक्वल है. उसके बाद वी कैन राइट डायगोनल BD इक्वल टू AC, उन्होंने गिवन है हमें, और ये कॉमन हो गई, SSS से प्रूफ हो गया. देयरफॉर एंगल A इक्वल टू B बाई CPCT, देन एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180, हैंस एंगल A इज इक्वल टू 90. Done. Okay, so let's prove each angle is 90 degree. For that, now in triangle, which two triangle you will take? You will take triangle DAB and triangle CBA. Okay, ये देख रहे हैं आप लोग, ये D, ये है DAB और ये है CBA. ये दोनों ट्राइंगल लिया, उसमें हम पहला एलिमेंट लिखने जा रहे हैं AD इक्वल टू BC, विच इज प्रूव्ड ऑलरेडी कि उसकी चारों साइड इक्वल है. उसके बाद दूसरा एलिमेंट हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू AC विच इज़ गिवन, एंड थर्ड साइड इज कॉमन, AB इज इक्वल टू AB विच इज अ कॉमन साइड, एंड देयरफॉर ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू ट्राइंगल CBA by SSS, and therefore angle A is equal to angle B by CPCT. Okay, but we know that angle A plus angle B is equal to 180 degree. Adjacent angles या co-interior angle, adjacent angles of parallelogram are supplementary. So we can replace this B by A. So twice of angle A is equal to 180, and therefore angle A is equal to 90 degree. Similarly, if each one angle is 90, all angles are 90 degree, and we can write, यहाँ हमने बताया this, give it number 3, we can write from 2 and 3. 2 में हमने all four sides are equal बताई, यहाँ पे हमने each angle is 90 degree बताया. So we can write from 2 and 3 ABCD is a square.